Students, in our last class we have discussed the triple product relation. Some of the notation we have discussed in the chapter function. Now today we will discuss how we can calculate the domain of the given function. Such kind of question is to be taken. One of the question that I have taken from your book, the example number 21, that is given. Suppose f(x) equal given is x square plus 3x plus 5 over x square minus 5x plus 4. This is given and question is that find out its domain. तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का या इस तरह के क्वेश्चंस के डोमेन आपको कैलकुलेट करने हैं, तो डोमेन का सबसे पहले मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि व्हाट डज इट मीन. डोमेन मीनिंग मैंने मेरी लास्ट क्लास में कहा था कि डोमेन का मीनिंग हमें x की वैल्यूज निकालिए जिन पर फंक्शन का एग्जिस्टेंस हो. द वैल्यूज ऑफ x वी हैव टू कैलकुलेट ऑन विच द फंक्शन इज टू बी हैविंग एग्जिस्टेंस. तो हमें क्या करना है फिर? Such type of function is to be given in form of like that. In case we will split the middle term of the given denominator first. तो क्या करेंगे इसको? Splitting middle term. Split कर लो. क्या लिखोगे? minus 4x minus x plus 4. X is to be taken common and again it should written in form that, then like that. यहाँ से आपके पास x की 2 वैल्यूज आ जाती है. इसके 0 कैलकुलेट करते हो तो देर आर 2 वैल्यूज. whenever these 2 values are substituted in the position of x in the given function, then it gives does not exist, infinite. और अभी हमने क्या कहा? on the value of which x the f(x) should be exist. it means इन वैल्यूज को अगर हम कंसीडर नहीं करें, किस में इन्होंने लिखा हुआ है द एफ दैट इज दिस इज द. तो हमें जब कुछ भी नोटेड नहीं होता है उस केस में रियल वैल्यूज मीनिंग है कैपिटल आर से कंसीडरेशन देना है. तो इसका जो डोमेन हो गया वो क्या हुआ? आर. और आर से माइनस का नोटेशन लगाएंगे, करली ब्रैकेट लगाएंगे और ये. अब इस चीज को समझना है क्या इसका मीनिंग निकल रहा है. इट मीन्स दैट रियल वैल्यूज वॉट एवर इट इज subtract 1 and 4 only these two elements. This curly bracket indicate that 1 and 4 there are two elements which are never be the value of x, और we can say इस r से दो वैल्यूज को क्या कर दें आप? रिमूव कर दें. Except all value of x is to be exist, that is the domain of this function. Whenever the question of such kind, every time you have to do same. Everybody is clear in their mind. The pattern of the question is to be that if it is a quadratic polynomial in denominator or a cubic polynomial in denominator or a biquadratic polynomial in a denominator, every time you will search that whenever this x will be 0, because on these values this f(x) is to be does not exist. So we will find out by any procedure up to the study of 10th. We have known that how we can calculate the 0 of the given polynomial. So we will calculate by that process, and this is to be removed from capital R. Curly bracket indicate that only these two values, right? Whereas small bracket it means exclude these, between these also, whereas close bracket included these two and also between them. So there is curly bracket, so only x1 is to be not taken, only x is not taken, for rest of them any value you can take out of capital R. So this is the domain of this function. One of the example that I will take another example, so it's very easy to understood. Again, next question. There is given f(x) equal x square plus
2x plus 1 and downside it is written x square minus 8x plus of 12. Quadratic polynomial is to be upside downside. तो हमें क्या देखना है, इसके ज़ीरो निकाल लें सबसे पहले. प्लस 12 इक्वल 0. कितना है स्प्लिटिंग करने पे 6 और 2 ले लें, राइट. यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे और x की वैल्यूज़ दे देंगे. क्या क्या आ जाएगी 2. डोमेन क्या हुआ, डोमेन कैपिटल R माइनस क्या 2,6. This is the domain of the given function. Every mind should be very clear how we can calculate the domain of the such type of function. Next question we will take mod minus x, right. The given function is माइनस ऑफ मोड एक्स, राइट. क्या पूछा गया है, डोमेन पूछा गया, रेंज पूछी गई. दो चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है, डोमेन एंड रेंज. तो गाइस x whenever it is not denoted that a function is to be such kind described from to from, then in case this x is to be taken from the capital R. ये आपको लेना नंबर लाइन पर है, पर क्या क्या वैल्यू एग्जिस्ट करेगी वो डिपेंड करेगा. कोई ऐसी वैल्यू भी है क्या जिस पे फंक्शन का एग्जिस्टेंस नहीं हो रहा हो, तो दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल R, राइट. नाउ तो x क्या क्या ले सकते हैं, x वी कैन टेक कैपिटल R. तो डोमेन क्या हो गया इसका, कैपिटल R, नंबर लाइन पूरी. बट द रेंज इज व्हेन एवर दिस R इज टू बी सब्स्टिट्यूटेड हियर. सपोज एग्जाम्पल के साथ इसको जस्टिफाई कर लें, व्हेन एवर x इज टू बी टेकन -3 and the fx that is equivalent to the y which is equivalent to the क्या क्या आएगा, -3 आपने सब्स्टिट्यूट किया तो मैग्नीट्यूड ऑफ -3 दैट इज +3 एंड आउटसाइड इज माइनस, देन रिजल्ट इज क्या आया -3 और आउटसाइड माइनस. तो रिजल्ट कितना आ गया इसका माइनस. दिस इज द मॉडुलस ऑफ x विच इज डिफाइंड बाई 3. रिजल्ट इज -3, राइट. On -3 the result is -3. On -2 again function क्या था, upside it is mentioned, क्या आया रिजल्ट -2. 1 magnitude of 1 outside minus -1. 0 magnitude of 0 outside minus, but 0 का minus plus always 0. 1 0 1 2 magnitude of 2 outside minus of 2. In a same manner you will proceed it like that. तो रिजल्ट क्या कंक्लूड हुआ, whenever x is to be taken capital R, y we are getting always negative as well as 0, right. क्या हुआ फिर, इसकी रेंज क्या हुई, अब कंक्लूड करें तो क्या रेंज हुई, कौन बताएगा. देखो 0 आ रही है और नेगेटिव वैल्यूज आ रही है, तो नेगेटिव सारी आएगी. 0 आपका रिजल्ट आ रहा है, नेगेटिव में आप ओपन में इनफाइनाइट डालेंगे. दिस इज द रेंज ऑफ दिस क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, everybody is clear in their mind how this comes. 0 you are getting, this is the neither positive nor negative, then it should be written 0 close bracket because 0 itself is to be included, right. Thereafter all x values gives the result that is y is always negative, all negative values you are getting. So this is represent that excluded minus infinite, except minus infinite, all values of negative, right. This is the range of this function. Come on, next question. Root of 9 minus x square. fx equal root of 9 minus x square. क्या निकालना है, डोमेन निकालना है और रेंज निकालनी, दोनों चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है. तो डोमेन के लिए आपको x की वैल्यूज व्हाट वी कैन टेकन दैट शुड बी सब्स्टिट्यूटेड हियर एंड वी आर गेटिंग द fx.
तो x की वैल्यू अब कैपिटल R से कुछ भी ले यहां पर, जिन पर फंक्शन का एग्जिस्टेंस हो, तो जो रिजल्ट आना चाहिए वो रियल वैल्यू जाना चाहिए। वेन एवर एक्स इज टू बी टेकन सपोज 4, देन द रूट इज टू बी नेगेटिव, and the negative root that is not exist. You already studied in chapter 4 quadratic formula. Whenever discriminant is to be less than 0, then the real root does not exist. तो फिर रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो फंक्शन का एग्जिस्टेंस क्या हो गया, अस्तित्व खतरे में है इसका। तो क्या हो गया, डोमेन कहा हमने 4 लिखा तो नेगेटिव आंसर दे दिया इसने, जब हमने लिखा 5 तो नेगेटिव आंसर दे दिया, मीन्स है मोर देन और वी कैन से ग्रेटर देन 3 वैल्यू। इफ वी विल सब्स्टिट्यूट हियर देन द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस फंक्शन इज टू बी नॉट देयर, सो इट इज टू बी ब्लॉक्ड। कि x की वैल्यू हमें कहां तक लेनी है, अप टू द 3। कहां तक लेनी है, 3 तक लेनी है। और फिर नेगेटिव में भी सपोज में -4 इज टू बी सब्स्टिट्यूटेड हेयर। x आपने लिया 4, fx आपका आ गया रूट के अंदर माइनस का 1697, ठीक है। तो यहां लिखोगे डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। फिर आपने कहा x, मैं तो और आगे जाता हूं तो fx कितना आ जाता है मेरा रूट के अंदर -16, राइट है। ये फिर डज नॉट एग्जिस्ट, नेगेटिव वैल्यूज का रूट लेना इम्पॉसिबल, दैट इज ए इमेजिनरी पार्ट। अब कहते हैं हम ये रिजल्ट क्या कंक्लूड हुआ, रिजल्ट हुआ व्हेन एवर x इज ग्रेटर देन 3 fx डज नॉट एग्जिस्ट। और x 3 पर यस इट एग्जिस्ट, मीन्स है एग्जैक्टली अप टू 3 वी विल इंक्लूड द वैल्यू ऑफ x, राइट है। सपोज इन नेगेटिव, कंसिडर द नेगेटिव वैल्यू सेम, x इज -4, द रिजल्ट इज अगेन x इज -4, तो fx कितना आ गया, नेगेटिव में 7। अगर x आपने लिया -5 तो fx कितना आ गया नेगेटिव के अंदर -16। तो सेम मैनर यू आर गेटिंग कि नेगेटिव में भी आप -3 तक ही वैल्यूज चूज कर सकते हैं, बिकॉज द स्क्वायर ऑफ -3 इज 9 एंड 9 - 9 इज 0। स्टूडेंट्स, इट इज वेरी क्लियर कि x क्या नहीं हो सकता, x 3 से बड़ा नहीं हो सकता और x -3 से छोटा भी नहीं हो सकता। -3 से इधर की तरफ कोई भी वैल्यूज नहीं ले सकते नंबर लाइन पे, राइट है। पर क्या -3 और 3 ले सकते हैं? Yes, because on these values it gives the result is 0, and between them all values should be exist because this root is to be greater than 0 whenever d, हमने पढ़ा था b square -4ac which is d, if d is greater than 0 then root exist। और कितने रियल रूट और कितने डिस्टिंक्ट, राइट। तो यही कंडीशन यहां अप्लाई होती है कि x 3 से बड़ा नहीं हो सकता, x -3 से छोटा नहीं हो सकता, तो x क्या होगा, x होगा -3 to 3 क्लोज ब्रैकेट। दिस इज द डोमेन, और वी कैन से दिस x इज टू बी -3 और 3, एक ही बात है, दोनों का मीनिंग। दिस इज द डोमेन। नाउ कम ऑन रेंज। अब रेंज की बात की जाए तो ये इस डोमेन में आपको x की वैल्यू यहां प्लेस करके चेक करना है वेदर ऑन विच वैल्यू दिस y विल बी एग्जिस्ट। whenever -3 is to be substituted the y is 0, whenever 3 is to be substituted the y is 0,
except any value you are placing here, you getting the positive value. Whenever 0 is to be substituted, the y is to be getting 3. Whenever different cases in its domain, if you substitute on the place of x, you are getting the value of y. That is, if x is to be minus 3 or 3, then y is 0. If x is 0, y is to be getting 3. Except these two values, you are getting the values between it. So the range is to be described, that is 0 to 3 close, that is the range. Understood it? So one of the conclusion is to be, we are getting from here, the conclusion is that, conclusion क्या है कि such type of question is to be in a different manner. If the question is to be arise like that, if this is the question, if this is the question, so similarly on behalf of this question we can conclude it, its domain that is to be defined minus 4 to 4 and its range defined that is 0 to 4. Its domain that is defined from minus 5 to 5, its range that is defined from 0 to 5. On behalf of the first question we can conclude this to another question. This is to be the answer of this domain and range of the given question. So students, you just clear whatever is the exactly answer of this question, and the procedure is to be, that is also same, right? तो डोमेन रेंज के लिए आपको क्या क्या करना है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं. यहाँ लिखा हुआ y इक्वल f(x) इक्वल 2 माइनस 3x, इट इज रिटन इन द क्वेश्चन, और कहा गया है x r में लेना आपको और x को 0 से क्या करना आपको ग्रेटर लेना, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. तो डोमेन जो होगा आपका वो 0 से बड़ा होगा, कैपिटल R में है, आपको रेंज बतानी इसकी, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. नाउ x is to be taken greater than 0 belongs to capital R and this is the number line, whereas the 0, इससे बड़ी वैल्यू लेनी है आपको x की, राइट है. चलो रख के देखो एक बार, आइडियल वर्क वी कैन चेक इट ऑन विच f(x) is to be, रेंज हमें बतानी है. आपने x लिया 1, यू जस्ट प्लेस देयर 1, देन x इज 1 क्योंकि ग्रेटर 0. ठीक है. तो y कितना आ गया, 2 माइनस 3 इंटू 1, 2 माइनस 3, द रिजल्ट इज -1. और बड़ी वैल्यू लो 2, y फिर क्या आ गया निगेटिव. ठीक है. अब आपने x लिया 0 और 1 के बिटवीन वैल्यूज, इफ यू चूज, सपोज यू टेक 0.5, तो y कितना आ गया 0.5, y इज टू बी 2 माइनस 3 इंटू 0.5, राइट है. तो अब क्या हो गया, ये आपका हो गया 1.5 और रिजल्ट इज पॉजिटिव. यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव, इट मीन्स y इधर की तरफ निगेटिव आ रहा है पूरा, राइट है. 1 से आगे की वैल्यूज आप प्लेस कर रहे हैं, यू आर गेटिंग द रिजल्ट दैट इज पॉजिटिव. आपने लिखा 0.5 निगेटिव, बट 0.5 इट गेट्स पॉजिटिव आंसर. सपोज 0.7 लिखते हैं आप, x इज 0.7, तो y इज टू बी 2 माइनस 3 इंटू 0.7, इट मीन्स 2 माइनस 2.1 और नेगेटिव 0.1, अगेन नेगेटिव. मीनिंग फर्स्ट यू विल कैलकुलेट ऑन विच इट बिकम्स 0. ये 0 कहाँ हो रहा है, द कैलकुलेशन इज टू बी दैट x इज कितना 2/3, दैट इज इक्वलेंट टू द 0.67, राइट है. मीनिंग वेन एवर x इज टू बी टेकन ग्रेटर देन 2/3, x अगर आप 2/3 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो ये नेगेटिव आंसर देगा, और अगर आप 2/3 लेंगे तो ये देगा 0, राइट है. तो ये आंसर 0 देगा. y क्या दे रहा है, 0 भी दे रहा है. y क्या दे रहा है, 0 भी दे रहा है. और आप और स्मॉलर वैल्यूज करते जाएंगे तो y के जो रिजल्ट्स हैं वो क्या क्या आएंगे, वो आपको यहाँ से आइडिया बनाना है. y आपका नेगेटिव वैल्यूज आ रही है,
0 भी आ रही है, वेन एवर एक्स इज टू बी टेकन 2/3 द y इज 0। और स्लाइटली कम करें वैल्यू, सपोज करो हमने लिया 0.5, तो हमारे पास क्या आ गया था, यहाँ 0.5 का मीनिंग हो गया था पॉजिटिव हाफ आ गया था, ठीक है, 3/2। फिर और इधर आ गए थे, आपने यहाँ पे लिख दिया था 2/3, 3 कैंसिल, 2 - 2 0, इसकी वैल्यू कितनी थी 0.67 अप्रॉक्स। अब आप नंबर लाइन पे और चले, अभी आपके पास यहाँ सपोज 0 था, यहाँ 1 था, यहाँ 0.5 है, यहाँ पे आपके पास 0.67 है, आपने अब 0.5 लिख दिया यहाँ पे, तो नेगेटिव आ गई वैल्यूज, राइट है। और आप इधर आ रहे हैं तो नेगेटिव आती जाएगी, राइट है, नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी। सपोज 0.4 लिखा आपने, पॉजिटिव आ रहा है। 0.5 आपने लिखा, आपने 0.5 लिखा तो कितना आया, आधा करेंगे 3/2, मीनिंग पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, राइट है। यहाँ पर y पॉजिटिव आया, यहाँ पर y पॉजिटिव आ रहा है, क्या 0.6 लिखेंगे तो पॉजिटिव, 0.7 लिखेंगे तो पॉजिटिव, राइट है, 0.8 लिखेंगे, 0.67 तक पॉजिटिव आएगी, यहाँ पर पॉजिटिव, फिर क्या हो गई नेगेटिव, राइट है। तो यहाँ से अब आपने क्या कंक्लूजन किया कि y, जब आप x को 0 लिख देंगे इधर, तो आपके पास y कितना आएगा, y विल बी 2 पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में y जो आएगा मैक्सिमम दैट इज 2। और इसके बाद अगर हम बात करें कि हमें x की डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं, यहाँ तक चलते हैं तो पॉजिटिव वैल्यूज मिलती है, जैसे आगे बढ़ते हैं हम y के लिए तो हमें निगेटिव वैल्यूज मिलती है। नीचे यहाँ जाओगी यहाँ मिलेगी, यहाँ जाओगी यहाँ मिलेगी, लाइक दैट। तो मीनिंग क्या हुआ, -∞ ओपन एंड टू क्लोज, दैट इज द range of this function. So different values you are taken here, and that should be placed into the given question. Check on behalf of ideas on number line, you take the values, select it and place in it, and then find out the range of this function. Domain is given, x is greater than 0, right, or belongs to capital R. So same in a different manner whenever प्लेसिंग दिस। अब क्या 2 क्लोज होगा इसमें, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि x इज नॉट इक्वल्स टू इट इज गिवन, तो फिर क्या होगा, इसकी रेंज हो गई -∞ to 2 ओपन, x इज नॉट इक्वल्स टू 0, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। Whenever x is equivalent to the 0, then it gives 2, but it is denied, x is to be greater than 0, तो exclude 2 से पहले तक की सब वैल्यू आएगी पर 2 नहीं आएगा। अंडरस्टूड इट? सो नाउ यू आर ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस एक्सरसाइज 2। ग्राफिकल वर्क वी हैव डिस्कस एंड द क्रॉस प्रोडक्ट वी हैव डिस्कस, and in some of the part that we will discuss in the set were roster form and the Cartesian form. So students, whatever is doing, you do in your notebook on behalf of book, regular doing the practice, because if some negligence is to be taking place, in case the perfection will not be there. So again I will say, do work hard, whatever is stated in the videos, you just follow your teacher and do exactly in your copies. Thank you very much.